Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me everybody. प्राइम मिनिस्टर मोदी का जन्मदिन है तो हम इनके लिए दो रीडिंग्स करेंगे आपके लिए इफ़ यू आर ऑल्सो हिज बिग फैन. फर्स्ट रीडिंग तो उनकी पर्सनालिटी की रीडिंग करेंगे हम और दूसरी रीडिंग हम करेंगे उनका आने वाला साल कैसा होगा जो कि हम बर्थडे पे यूजुअली करते हैं. पर्सनालिटी रीडिंग में हम जानेंगे कि व्हाट मेक्स दिस you know a simple person, a very humble person with a very humble background, essentially, importantly, somebody who was selling teas. What goes behind, this creating this magnificent change for yourself? क्योंकि कितने बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, हमने तो अच्छी जगह से पढ़ाई नहीं की है, हम दूसरों के पास ये अपॉर्चुनिटी था. लेकिन व्हाट अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एज ही स्टार्ट विद दिस हम्बल बैकग्राउंड ऑफ बीइंग अ चाय वाला. फ्रॉम बीइंग अ चाय वाला टू taking the world by the storm of his love and magnetism. What is this personality all about? Let's take a sneak peek into the personality of this man. The world is, going gaga over. Essentially, abhi unhone, it's like, everybody just loves being around him. They're all happy, dappy. Sab log aake milte hain, big personalities. And especially with the G20 recently organized in India, it just gave me a feeling ki it was a occasion, there was something that is being organized in my own house. Itna zyada involvement, itna zyada positive vibes. The world leaders, right from Joe Biden, Albany and Rishi Sunak and everybody coming and itna garam joshi. How can you create something like that? So we will see his maverick personality and we will also see आने वाला साल उनके लिए कैसा होने वाला है. So why not first get started with आने वाला साल उनके लिए कैसा होगा. So let's get started with this insight into it. Of course, I was feeling a bit confused कि कौन सा कार्ड उनके लिए यूज़ किया जाए and then I had this epiphany, simple living, high thinking, right? तो मैंने सोचा okay, let me use this simple card. Wow, Ace of Wands. I've just charged my card and kept it like this and this is a new beginning. आई थिंक उनका पहले का भी कुछ कार्ड किया था शायद इंडिया से रिलेटेड, तो वहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड और न्यू बिगिनिंग जैसा कुछ आया था. एग्जैक्टली वेयर आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू, इट वॉज देयर इन दैट रीडिंग, बट नेवरदलेस इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग. उनका बर्थडे है, न्यू बर्थडे ईयर स्टार्ट हो गया है. लेट्स सी व्हाट डिवाइन हैज़ टू टेल हिम अबाउट दिस न्यू year that he starts today with his birthday. So let's see. New beginning and conflicts is always going to be there, as all these great people come with great missions in their life. They cannot have it easy. Agar easy hona hai to we don't need great souls. If they are great souls, they come with these blessings, they will have to fight it through. Their life will be challenging because it is meant to be. God's guardians, angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides, Mother Kema Kali, Om Ganeshaya Namah, Jai Bajrangbali, my dear friend, is beautiful, my guardian angels. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for our Prime Minister Narendra Modi ji. What is this new year bringing for him? Thank you so much for divine guidance and blessings coming for all of us here. Okay. Eight of Cups in reverse. There is some kind of emotional loss that he suffered. This could be related with the loss of our brave hearts in Anantnag, guys. Okay, this could be he feeling the emotional loss. क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि other than that there is anything else. We just hosted a very successful G20 meeting, and I think he was also busy with few things in Madhya Pradesh. However, his energy as a उनकी एनर्जी 8 ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस किसी चीज़ का हुआ है, किसी चीज़ का काफ़ी दिल में दुख हुआ है, बट इससे बाहर आ रहे हैं. दिस इज़ द सेंटर ऑफ द रीडिंग. लेकिन जस्ट a quick out of the bat, let's keep on going and let's see what's really happening in here.
So we will have to keep this something over here. Let's keep this here. Wow, that's a lot of growth coming in for him going forward. Attitude कैसी है इनकी? Always working on something. आज ही मैं सुन रही थी, it is his birthday and they were telling a lot of things on TV, and yet again I heard that for last 9 years he has not taken any leave, and this is his energy of constantly working on his passion, on his work, on his life mission, life purpose पे constantly काम करना. और ये जो एक बार आप सुनते होंगे ना कि वो छुट्टी नहीं लेते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत कम सोते हैं. This is exactly his attitude, always working on his craft. So this is what it is. Environment में देखेंगे क्या है उनके hopes and fears. How about keeping it here? Wow, that's a lot of success, grounded success, okay, nurtured success, creating for yourself. We will keep this here. I think you can see that, right? Okay, back of the deck में check कर लेते हैं. 3 of Pentacles in reverse. ये वाला shift shuffle करते वक्त भी ये कार्ड आया था. किसी चीज़ से related decision लेना है इनको. Some decision making is going on here. क्या हो रहा है मोदी जी के? आने वाला साल कैसा होने वाला है? ओके, देखिए आने वाला साल तो यहाँ पे इफ़ यू सी दिस एम्प्रेस कार्ड इज ऑल अबाउट अ वेरी गुड टाइम, सक्सेस, ग्रोथ, abundance, prosperity. Empress brings all these things. Empress also brings success to something that you are growing in your belly, right? As an Empress, you are pregnant and a baby is to come out, like some कुछ चीज़ जो एक न्यू बर्थ होने वाला है, सक्सेस, जो भी आप जिस चीज़ पे भी मंचॉन कर रहे हो, जेस्टेशन पीरियड है, वो एक बर्थ होने वाला है और काफ़ी सक्सेस होने वाला है. Empress का कार्ड, and here is the nurturing Queen of Pentacles. Now Queen of Pentacles, what is it telling? Queen of Pentacles is also very nurturing, but she's also very very good with her enterprise. She is like, वो अपने घर का भी केयर करती है, but she makes a lot of fine and very good decisions related with business. Remember, she has this nurture of a Empress, but she's also very good with money. So two things combined. She is more like, she has this acumen related with money decisions, very good, and the same time very nurturing also. So वो चीज़ उनके लिए blessings आ रही है. यहाँ पे भी blessings है. Looks like a great year for him, absolutely. तो वो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे. एटीट्यूड हमेशा मेहनत करने वाला, वो देख रहे हैं. अभी तुरंत अगर आप देखो तो हमने G20, अभी अगर इमीडिएट पास्ट हम देख लेते हैं तो G20 का वेरी सक्सेसफुल इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है, वेयर इट वाज वेरी सक्सेसफुल. इंडिया हैज बिकम अ होप in the world is seeing India as in a new light, in a very powerful light, as somebody who can bring the world together, Vasudhaiv Kutumbakam, that kind of a thing. So एक स्टार का कार्ड अभी तुरंत उनके पास्ट में एक G20 वाली सक्सेसफुल एनर्जी को दिखा रहा है. द वे ही इज बीइंग हेल्ड एज अ न्यू लीडर हु कैन ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबडी स्टैंड्स इक्वल. Right, he was just able to bring the African nations into the G20 summit, right? It is about not pushing anybody backward, but it is about bringing everybody on the same page, giving them equal love, respect, which everybody deserves. And that is what makes you a very exemplary leader. So ये G22 का सक्सेस है exactly अभी यहाँ पे. लेकिन अगर आप यहाँ की एनर्जी देखिए, जो प्रेजेंट एनर्जी हो रहा है, यहाँ पे सैडनेस है, ओके, बट सैडनेस से बाहर निकलते हुए, बिकॉज ही इज अ मैन हु इज ऑलवेज ऑन द वर्क, ऑलवेज गोइंग. किसी चीज़ का तो लॉस हुआ है, अब इनके लाइफ में अभी ऐसा कुछ ऐसा हमें नहीं दिखता है. यस बट अदर देन what has happened in Anantnag, right? In Anantnag, we lost 3 of our brave hearts. Operation is going on for 4-5 days now. Or have you seen that Anantnag का जो पहाड़ी है? It is straight पहाड़ी है वो बिल्कुल. It's a very beautiful place, but
ऑफ कोर्स मिलिटेंट्स ने उसको हाइड आउट्स बना लिया है एंड द ऑपरेशन राइट नाउ इज गोइंग ऑन टू पुश देम अवे फ्रॉम दीज हाइड आउट्स. एक ब्यूटिफुल सा जगह है अनंतनाग, ब्यूटिफुल पहाड़ी, बट सी व्हाट इज रियली हैपनिंग देयर. एनीवेज, तो यहाँ पे एक इमोशनल लॉस डेफिनेटली वो फील कर रहे हैं यहाँ पे. सबकॉन्शियस लेवल में भी डिफिकल्ट टाइम से इट्स लाइक एक्सक्यूज मी. एक दो तरह की एनर्जी है गाइस, दो तीन तरह की कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे. एक एनर्जी तो डेफिनेटली है कि आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा दिख रहा है उनके लिए, काफ़ी ग्रोथ अबंडेंस लेके आ रहा है. जिस चीज़ पे भी वो काम कर रहे हैं, काम लगातार वो करते ही रहते हैं. बट एक किसी तरह की यहाँ पे ऐसे कि बोले ना कि वाई डू वी हैव दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है यहाँ पे, और 6 and 6, 2 6s अपोजिट ईच अदर. और यहाँ पे एक स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है, स्कैटर्ड एनर्जी बनी हुई है यहाँ पे. लाइक यू नो, लाइक ही वॉन्ट्स टू टेक एक्शन ऑन समथिंग, लाइक ही रियली वॉन्ट्स टू टेक एक्शन ऑन समथिंग. और वो अभी मैंने तुरंत अनंतनाग की पहाड़ी की बात की है, एंड अनंतनाग की पहाड़ी बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट, राइट. आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस एंड ही इज़ मोर लाइक यू नो व्हाट, ये जो यहाँ पे हाइड आउट्स बना के बैठे हैं ये लोग, इनका क्या किया जाए, क्योंकि ये लोग तो लॉस पे लॉस हमारा होता ही है. यू नो, वी सफ़र कैजुअलिटी, वी लूज आवर ब्रेव हार्ट्स. Mothers lose their brave sons. I have been watching Manpreet Singh and Ashish Dhonchak and Humayun Bhatts, you know, all this, you know, जो भी आ रहा था टीवी पे and all that. Their story, how they did, what they did and everything. I was into it totally. हालांकि यू नो व्हाट, ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज मैंने न्यूज़ में भी सुना, आई थिंक सम अपोजिशन वाज लाइक यू नो ही इज़ बिजी विथ हिज ओन थिंग, ही इज़ नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द ब्रेव हार्ट्स, मार्टियरडम ऑफ ब्रेव हार्ट्स. तो वो चीज़ भी मेरे कान में पड़ी थी कि यस, अपोजिशन इज़ लाइक यू नो ही इज़ बिजी विथ हिज ओन प्रचार एंड प्रसार, और वो ब्रेव हार्ट्स के मार्टियरडम के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं. बट एनर्जी जो यहाँ पे दिखा रही है वो काफ़ी डिफरेंट एनर्जी है. अगर आप देखो यहाँ पे G22 का सक्सेस तो यहाँ पे दिख रहा है. G22 वॉज अ ग्रैंड सक्सेस एंड दैट इज स्टार कार्ड ब्रिंगिंग यू द ग्रैंड सक्सेस इन पास्ट. इट एब्सोल्युटली हैपेंड. इंटरेस्टिंगली इनफ अगर यहाँ पे देखो तो ही वॉज एबल टू यू नो मिक्स एंड मैच थिंग्स वेरी ब्यूटिफुली, ब्रिंग होल वर्ल्ड टुगेदर, being appreciated by US as well as Russia and everybody. So quite a fulfilling dream achieved just now, 1 week. बट अचानक से यहाँ पे इमोशनल लॉस, बट इमोशनल लॉस भी है तो उससे बाहर निकलते हुए, और ऐसा लग रहा है ना कि वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं. यू नो, ही वॉन्ट्स टू टेक सम एक्शन ऑन समथिंग. अब एक्शन आप किस चीज़ पे लेना चाहते हो, ये हमें इन्वायरमेंट वाले कार्ड से पता चल रहा है. और यहाँ पे क्या है, उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये जो यहाँ पे जो हमने जस्ट इस कार्ड पे मेरी नज़र पड़ी, उससे पहले मैंने अनंतनाग की पहाड़ी के बारे में बात किया, जो कि मैंने न्यूज़ में देखते वक्त आई जस्ट वेंट थ्रू लाइक दिस अनंतनाग की जो ये पहाड़ी है कितनी सुंदर है, बट इसमें हाइड आउट्स बना के मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं. यू नो, हाइड आउट्स बना के मिलिटेंट बैठे हुए हैं, शैडो साइड में है ये कार्ड. एंड आई थिंक यू नो ही वॉन्ट्स टू टेक सम एक्शन. ही रियली वॉन्ट्स टू टेक सम एक्शन. ही इज़ लाइक वेरी एंग्री. यू नो, काफ़ी लॉस हुआ है इनको जो भी अनंतनाग में हुआ है. नहीं तो अदरवाइज ऐसा कुछ अदर देन दिस अनंतनाग चीज दैट हैज हैपेंड विच इज वेरी सिवियर. वी टुगेदर एज अ नेशन हैव फेल्ट द पेन of our 3 brave hearts losing their life for Mother India. और यही वो पेन है यहाँ पे. So again, if you feel the pain, if you feel the emotional loss, you cannot go on telling the people that you have felt the loss, right? वो चीज़ें हैं. और ये जो इमोशनल लॉस हुआ है ना, इस पे वो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं.
ही जस्ट वॉन्ट्स टू टेक सम एक्शन, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो जितना भी इन यहाँ पे मिलिटेंट्स को लीनियंसी दी गई हुई है या एक क्रैकडाउन नहीं हो रहा है ना, इसके कारण कुछ काम नहीं बन रहा है. यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दिस. ही लाइक वॉन्ट्स टू टेक दिस एक्शन. एंड शायद वो बहुत मुश्किल से वो अपने आप को रोके हुए हैं एक टू नॉट रश विद द एक्शन. बिकॉज यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ सोर्ड ऑलरेडी इज अ एक्शन पैक्ड हीरो. ही वॉन्ट्स टू टेक द एक्शन, जंप ऑन इट, फिक्स इट. मगर यहाँ पे जो उनकी एनर्जी जो लॉस से हो रही है ना, जब हम किसी चीज का हमको बहुत ज्यादा दुख और दर्द हो जाता है एंड वी आर लाइक वी जस्ट गिव अप ऑन दिस एंड वी जस्ट वांट टू क्रैक इट डाउन. तो वही वाली एनर्जी यहाँ पे है. ये जो एनर्जी है कि मुझे अब इसको फिनिश ऑफ कर देना है, और वो बस इसलिए रुके हुए होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग, वो हेस्ट में कुछ करना नहीं चाहते. ही जस्ट वांट्स टू प्लान थिंग्स आउट. बट यू नो व्हाट, यहाँ पे भी देखो तो कहने का मतलब है कि अभी जो प्रेजेंट एनर्जी जो उनकी है पर्सनालिटी की, वो क्या है कि वो अपने आप को मुश्किल से रोक पाए हुए हैं टू नॉट क्रैक डाउन ऑन दीज पीपल, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये तो सुधर नहीं रहे. एक स्ट्रिक्ट एक्शन फिर से जरूरत है इन पे. ओके, अगर आप देखो तो ये नाइट ऑफ सोर्ड रिवर्स हो गया है, विच इज शोइंग wanting to take action, wanting to importantly crack down on something that has caused so much of loss. जो भी चीज दिल दुखाई है ना, उस पे वो एक्शन लेना चाहते हैं, दौड़ के एक्शन लेना चाहते हैं. और अगर दौड़ के एक्शन लेना चाहेंगे तो इसका फेस किसकी तरफ हो गया, सक्सेस की तरफ हो गया. तो यहाँ पे अगेन अगर आप ये देखो तो ये पहाड़ी वाला यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट है, यहाँ पे वो बैठी हुई है. ही अगर वो एक्शन लेंगे तो उनको काफी सक्सेस मिलने वाला है. अगर टोटल क्रैकडाउन करते हैं, अगर कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज अगेन फिर से होती है, लाइक टोटल क्रैकडाउन इन सम वे, अभी भी ऑपरेशन चल ही रहा है, तो वहां पे काफी सक्सेस मिलने वाला है इनको. एक्सक्यूज मी, पहाड़ी में काफी सक्सेस मिलने वाला है जहां पे क्रैकडाउन हो रहा है अभी. एंड ही इज ऑल्सो कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पहाड़ी, अनंतनाग की पहाड़ी पे. ओके, ये चीजें हो रही है, ये सब चीज हम समझ गए हैं. या यहाँ पे no need to compromise with these people. Okay, it's like a crackdown, no compromise. 6 of Pentacles, balance, no. इनसे आप चाहे तो ये कितना भी कुछ, देखो we always will have to pay a heavy price for something. Okay, freedom, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. तो for everything worth it there is a price that we have to pay through our blood, sweat, tears, guys. Okay, और ये चीज जो आप देख रहे हो ना कि इतना ज्यादा दुख, हालांकि मोदी जी को देख के आपको लग नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं लगा था कि वो इतना ज्यादा पेन फील किए हैं. बट दिस इज द एनर्जी ऑफ हिज, this is the energy that is capturing here. This is the success of G22. This is the present energy. Feeling the loss, at the same time working on his things. तो ये वही चीज है, लॉस फील कर रहे हैं एट द मोमेंट इन हिज हार्ट, बट अपना काम वो निरंतर जिस तरह से करते हैं करते ही रहते हैं. नो, द वर्क ऑलवेज, द शो मस्ट गो ऑन इवन इफ यू आर फीलिंग द हर्ट. हालांकि निकलते हुए, और इससे निकल के क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि सर पे कफन बांध के निकल जाते हो. जब कोई चीज आपको इतना ज्यादा हर्ट कर जाती है तो आप क्या करते हो, बेसिकली आप सर पे कफन बांध लेते हैं. और ये जो बंदा है ये सर पे कफन बांध के ही निकलता है कि जितनी भी लड़ाई तेज हो, आई एम गोइंग टू स्मैश इट आउट, टोटल क्रैकडाउन. और ये टोटल क्रैकडाउन किस पे करना चाहते हैं, ये अनंतनाग के लोगों पे, ये अनंतनाग के जो मिलिटेंट्स हैं उस पे करना चाहते हैं. बिकॉज ही इज नो मोर इन दिस कॉम्प्रोमाइजिंग मोड. ओके, more like you will beg and I will not forgive you for what pain and loss you caused me. No compromise, total crackdown. I am getting this energy. It's more like, you know what, I will not leave my place. यहाँ पे क्या है, ये कुछ लोग जो हैं ये अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज देखो. And it is like, no, I will not compromise. I will stay in my place. I will stay in Anantnag. It is you who will have to run for your life. You cannot push me away from my place. जैसे कि ये लोग मिलिटेंट्स लोग जो बैठे हैं ना घेरा करके, हाइड आउट्स बना के, ये उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं. अभी जो प्रेजेंट हो रही है, जो प्रेजेंट एनर्जी उनकी है मोदी जी की, हालांकि वो अपना हर काम कर रहे हैं,
हर चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि उनका बर्थडे भी था तो वो मेट्रो में नज़र आए, लोगों से बातचीत करते नज़र आए, एक नया मंडपा भी बना है वहाँ पे भी उन्होंने इनाग्रेशन की। वो हर काम अपना कर रहे हैं 1 2 3 4 करके, पर दिल में क्या है, दिल में बहुत दुख है और उसको वो एक्शन लेना चाहते हैं। ही इज़ नो मोर इन द, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज के मूड में ही नहीं है। और क्लोजली किस चीज़ पे वॉच कर रहे हैं, इवन दो ही इज़ वॉकिंग इन दी मेट्रो टॉकिंग विथ हिज पीपल, इनाग्रेशन कर रहे हैं कुछ मंडपा का, एमपी में दिखे थे प्रचार प्रसार में, अपना काम करते जा रहे हैं, जो कि एज अ पीएम प्राइम मिनिस्टर उनकी पूरी आइटनरी होती है, उनको वो काम करना ही रहता है। ही इज डूइंग हिज थिंग्स, बट नज़र किस चीज़ पे है, नज़र है अनंतनाग की पहाड़ियों पे, जहाँ पे हमारे जवान, हमारी आर्मी क्रैकडाउन करने में लगी हुई है, उस पर उनकी कड़ी नज़र है। ओके, एंड ही इज लाइक नो कॉम्प्रोमाइज अब नहीं होने वाला। 6 का कार्ड यहाँ पे, 6 का कार्ड यहाँ पे, 6 का कार्ड यहाँ पे, ही इज टोटल लाइक क्रैकडाउन वो बनाना चाहते हैं, एक प्लान बनाना चाहते हैं जिसमें घेरना चाहते हैं किसी को। एंड ही इज लाइक कि नहीं, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे डर से, हम वापस आएंगे और हम तुमको सबक सिखाएंगे, बिकॉज नाउ वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ यू। ठीक है, अभी वो काफी थोड़े से, अगर होप भी देखो तो काफी क्लाउडेड थोड़ा सा फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ये जो हमारे 3 ब्रेव हार्ट्स गए हैं ना, उसके कारण वो था काफी ही इज फीलिंग ट्रैप्ड, थोड़ा सा वो ट्रैप्ड वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो वो चीजें हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चीज हो रहा है। डबल सक्सेस, वेरी गुड सक्सेस अगर वो कुछ क्रैकडाउन करते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि ही वांट्स टू गो गन्स ब्लेजिंग ऑन दिस अनंतनाग मिलिटेंट्स, he will get a lot of success, वहाँ पे भी सक्सेस है। तो अ ग्रेट ईयर फॉर हिम डेफिनेटली। एक बहुत प्रेजेंट की एनर्जी गाइड्स ने दे दी है। ये वाला G20 का सक्सेस है, ये वाला नो कॉम्प्रोमाइज विद द मिलिटेंट्स, मोर लाइक वो अपने भीख मांगेंगे तभी भी वो माफ नहीं करने वाले हैं उनको। एंड ही इज लाइक गोइंग बैक टू गेटिंग वॉट ही बिलोंग्स टू अस, एंड ही इज हियर चार्जिंग फॉरवर्ड, सर पे कफन बांध के अपना काम कर रहे हैं, कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग हियर। वर्कआउट हो रहा है, कुछ करने की कोशिश, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो फॉरगिव नहीं करना चाहते हैं। ये जो मिलिटेंट्स वाली चीजें हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग में वो बहुत कुछ मेजर डिसीजन शायद वो लेना चाह रहे हैं या लेंगे शायद। ओके, और उस पर वर्कआउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आई मीन इट्स मोर लाइक कि सी यहाँ पे जो कार्ड आप देख रहे हो ना कि डिसीजन, माने कि ही वांट्स टू जस्ट रश विद इट एंड फिनिश दिस पीपल आउट। तो यहाँ पे अभी बहुत विचार विमर्श हो रहा है, टीम साथ में मिल रही है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे क्रैकडाउन करना है, क्या करना है, डिसीजन क्रैकडाउन करना चाहिए क्या, जस्ट फिनिश दम ऑफ, या फिर कोई बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए, टोटल फिशिंग दम आउट, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की चीजें हो रही है। तो बहुत ही प्रेजेंट एनर्जी यहाँ पे ये वाला मिडिल रो कैप्चर कर रहा है। ये G22 का एनर्जी है, G20 का एनर्जी है। यहाँ पे ये आने वाले 2 सक्सेस इसको बताए जा रहे हैं। अगेन उनका जो निरंतर एक एटीट्यूड होता है, काम करते रहे, काम काम काम, वो वाली चीजें हैं। दिल में दुख है, लॉस है, पर अपना काम चल रहा है। एग्जैक्टली उनको देख के लग नहीं रहा था कि ही हैज फेल्ट द पेन ऑफ बट येस ऑफ कोर्स वो चीजें हैं और ये सारी चीजें हैं। ब्यूटिफुल, आई थिंक इट इज कैप्चरिंग वेल। नाउ लेट्स पुल अनदर कार्ड्स फॉर हिम। सो आने वाला सक्सेस विद दिस गाइज, एम्प्रेस कार्ड इज definitely bringing a lot of success for him, success that he has worked very hard on this, जो मेहनत किया है उसका फल मिलने वाला है। वहां पे भी एक नर्चरिंग, ग्राउंडिंग एनर्जी, गुड मनी बेस्ड डिसीजंस, गुड वो सब चीजें हैं। So thank you dear angels for the guidance coming for Prime Minister Modi for this coming year. We thank you so much for this. Exactly, वो किसी चीज पे भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, एंड ही वॉन्ट्स टू टेक एक्शन। कोई चीज है जो उनके दिल में ना बैठ गई है, आप देख रहे हो ना, पर वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो वो चाहते हैं कि इतना जो किसी चीज के कारण दुख हुआ है ना, वो उस पर डिसीजन बिल्कुल लेना चाहते हैं, बिल्कुल उस पर टनल विजन हो गए कि अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, मेरी जो चीज है ना वो वापस तुमको ठीक करना पड़ेगा, मोर लाइक अ POK थिंग। ओके, और ये बहुत क्लोजली इस सारी चीजों पे नजर रखे हुए हैं। तो
इसीलिए क्योंकि ऑब्सेसिव थिंकिंग हो गई है कि इवन दो वो बाकी सारी चीजों में बिजी हैं, लेकिन फोकस किस पे है इनका? फोकस इस पहाड़ी पे ही है उनका। देख रहे हो ना, इस पहाड़ी पे ही देख रहे हैं नजर। हालांकि वो हर काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 मंडपा में गए, मेट्रो में घूमे, बाकी सारी चीजें की, लेकिन फोकस किस पे है? इस पहाड़ी पे है। और वो बिल्कुल इस पे टनल विजन हो गए हैं। एंड वो नहीं चाहते, पर वो डिसीजन नहीं ले रहे। इवन तो यहाँ पे है कि वो फटाक से जाके क्रैकडाउन करके डिसीजन ले, वो अभी थमे हुए हैं। ओके, ही डजंट वांट्स टू टेक एनी डिसीजन इन अ हेस्टी वे। तो ऑब्सेसिव थिंकिंग हो गई है। यस, ही इज सर पे कफन बांध के कब निकलते हो आप? जब आप बिल्कुल उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। बट यस, हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए वो अपने हाथ को उन्होंने बांध के रखा हुआ है। बट दैट इज व्हाट इट इज। बैक ऑफ द डेक में, चलो ठीक है। वाओ, this card has made its own entry. In a quiet meditation and contemplation, let go and enter the stillness within. Silence can heal and replenish you. Exactly, यहाँ पे किसी चीज का बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस हुआ है। ओके, और अब है कि बस इनको क्रैकडाउन करना है इनको, और उस पर ही नज़र बनी हुई है कि क्रैकडाउन कैसे करना है। लेकिन गाइडेंस क्या आया है? जल्दबाजी में हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे वो अपना हाथ को बांध करके भी बैठे हो कि नहीं, डिसीजन तो नहीं ले, सोच समझ के डिसीजन लेना है। और कैसे एक फाइन डिसीजन आप कब लेते हो? शांत मन से फाइन डिसीजन लेते हो, है ना। तो वो गाइडेंस आया है कि शांति बनाए रखने के लिए हीलिंग की जरूरत की बात हो रही है। स्टिलनेस विद इन, साइलेंस एंड हील, साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू। हीलिंग की क्यों जरूरत है? यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस, किसी चीज का बहुत ज्यादा दुख हुआ है। एंड इट ऑल रिलेट्स विद दिस व्हाट इज हैपनिंग इन द अनंतनाग ऑपरेशन। ओके, ऑल राइट, ही इज ग्रीविंग बेसिकली। इमोशनल लॉस इज डेफिनेटली ग्रीविंग समथिंग। क्या देख के उनको लगा कि वो इतना ज्यादा हर चीज पे, अपने काम पे करने वाले इतना ग्रीव कर रहे हैं कि वो कफन बांध के किसी चीज पे ऑब्सेसिवली, किसी एक चीज पे सोच रहे हैं वो। Even though we are busy with a lot of things, you will see him celebrating his birthday, but he is obsessively thinking about only one thing. ये जो देख रहे हो ना, आपकी तलवार लेके किसी चीज के ऊपर चार्ज करना, he is focused on one thing. Total crackdown, no compromise. He wants to create some magic. You have the Midas touch right now, and every project you begin turns into goal. Exactly. Every project you turns into a goal with this Midas touch and Empress energy and this energy. तो डेफिनेटली उनके दिमाग में अभी कुछ कुक हो रहा है। ओके, ब्लेस चेंज भी है बाय द वे एट द बैक ऑफ द डेक में। लेकिन अभी वो डेफिनेटली उनके दिमाग में ना कुछ चल रहा है। ऑब्सेसिव थिंकिंग किससे पता चल रही है? यहां इस कार्ड से हमें पता चल रहा है ऑब्सेसिव थिंकिंग। ओके, किस चीज पे ऑब्सेसिव थिंकिंग हो रही है? जो अनंतनाग में हो रहा है ना, वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ही इज नो मोर इन द मूड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। नो कॉम्प्रोमाइजिंग। काफी इमोशनल लॉस हुआ है। आप इस तरह के डिसीजंस कब लेते हो कि नो, अब तो आई विल टोटली फ्लश यू आउट? जब किसी चीज ने बहुत ज्यादा दिल दुखा दिया है, तब होता है। और अभी क्या कर रहे हैं? सोच समझ के जो एक्शन लिया जाएगा उसमें काफी सक्सेस मिलेगा। Alchemy, whatever you touch turns into gold, and boom, Empress is just telling you that energetically. This is telling you overall, this is energetically. And not just that, we also have this Queen of Pentacles telling you that he will claim what is his. जिस चीज को हम छोड़ के आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गए थे, जिस चीज को हमने एक्चुअली बेसिकली आई थिंक ही इज प्लानिंग फॉर दिस पीओके। ओके, देख रहे हो ना, ही वॉन्ट्स, देखो पीओके को छोड़ के हमको बाहर निकलना पड़ा, लेकिन अब उनका प्लान है कि नो कॉम्प्रोमाइज विथ यू पीपल, वी विल गो बैक टू वॉट वॉज आवर्स। तो उनकी कुछ लंबी प्लानिंग चल रही है। ही इज थिंकिंग ऑन समथिंग लॉन्ग. And is he getting success? Boy, oh, absolutely. Alchemy, Empress and Queen of Pentacles is telling you not, ये जो Queen of Pentacles है ना, ये Emperor, ये वाली G20 वाली एनर्जी है. Business sense, economic development, Miss World being organized in Kashmir. Business sense with the same everything. So this is his coming year, guys. I just hope that this helps. Do let me know your thoughts, and I will see you again. Take care and bye for now, guys.